तो चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है the body passes 12 meters in the second, 28 meters in the fourth second. meters and 28 meters in the fourth second. Find its initial velocity and acceleration if uniform. Find also the distance traveled in the 10 second. ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में बोला है अपन को गिवन है कि बॉडी जो है सेकंड सेकंड में 12 मीटर, 4 सेकंड में 28 मीटर, and we have to find the initial velocity and acceleration and distance traveled by the body in the 10 second. So let the initial velocity is u and acceleration a, and we know that formula for the distance traveled by the body in the nth second, s nth is equal to s nth is equal to u plus a by 2 2n minus 1. So s second is equal to u plus a by 2 2 into 2 minus 1. S second given at 12 meter. 12 is equal to u plus a by 2 4 minus 1 3. This is equation number 1. And S fourth is equal to u plus a by 2 2 into 4 minus 1. S fourth 28 meters, u plus a by 2 8 minus 1 7. This is equation number 2. Equation 2 minus 1, 28 minus 12 is equal to u plus 7a by 2 minus u plus 3a by 2. लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में से साइड हैंड साइड, ब्रैकेट ओपन करो, ये u कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 16, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 7a minus 3 16 into 2 divided by 7 minus 3 4 is equal to of 8. 4 4 ja 4 to 8 means acceleration is equal to 8 meter per second square. 8 meter per second square. Substitute the value of a in equation 1. Then by 1, 12 is equal to u plus 8 by 2 into of 3 to 4 ja 4 into 3 12, 12 minus 12 0, initial velocity 0. इसका मतलब बॉडी ने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया था, तो
u की वैल्यू 0, acceleration 8 and distance covered by the body in the 10 second s then is equal to u plus a by 2 into 10 minus 1 s then is equal to 0, acceleration हमने 8 फाइंड किया था, 8 by 2 20 minus 1 19 4 means s then is equal to 72 meters. Answer right. Next question number 10. From the top of a tower, a stone is dropped if it covers 24.5 meter in the last second of its motion. Find height of the tower. Let the total time traveled is and total time taken is n. Thus, according to question, the 24.5 meter traveled in the last second means in nth second. भाई हमको टावर की हाइट मान लीजिए पूरी h है और आपने ड्रॉप किया मतलब ये रेस्ट से टोटल टाइम लगा सपोज n, तो लास्ट सेकंड का मतलब हो गया nth सेकंड s nth और ये हमको गिवन है 24.5 मीटर। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे s nth इज इक्वल टू u प्लस a by 2 2n minus 1 s nth हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 24.5 u 0 a 9.8 by 2 2n minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किया जाएगा 49 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 2n minus 1। यहां से पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 5 है ना, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों ये 2n minus 1 तो ये n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब टोटल हाइट ट्रैवल करने में 3 सेकंड लगा है और लास्ट सेकंड का मतलब थर्ड सेकंड में 24.5। तो अब टोटल डिस्टेंस मतलब हाइट आ जाएगा तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाइट u0 हाफ 9.8 t स्क्वायर, h is equal to 9.8 into 9 by 2 h is equal to, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time lapse is t seconds, calculate first maximum velocity reached and second the total distance traveled. कार है स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और एक्सेलरेट हो रही है बाय अल्फा
मतलब एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और एक समय पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद ब्रेक लगा, रिटार्डेशन, डिसलेरेट्स, तो a इज इक्वल टू बीटा लेकिन माइनस, जिसकी वजह से वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। टोटल टाइम t गिवन है, हमने जब तक एक्सेलरेट यूज किए टाइम लिया t1 और डिसलेरेट किए टाइम t2 अज्यूम किया। हालांकि क्वेश्चन में हमको गिवन है टोटल टाइम t है, तो ये डिस्टेंस s1, ये s2 और टोटल टाइम हमको गिवन था t। तो हमको गिवन अल्फा है, बीटा है और t, इसलिए जो भी आंसर हम बताएंगे वो गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में होने चाहिए। तो हमको फाइंड करना है फर्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी रीच एंड सेकंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए यदि आप पहले एक्सेलरेटेड जर्नी ले लें AB, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v हो जाएगा v मैक्सिमम, u 0, a अल्फा और t हो जाएगा t1। इसका मतलब t1 इज इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन अल्फा। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट BC जर्नी के लिए कैलकुलेशन करो। रिटार्डेड जर्नी है, इसमें जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at, अब v 0 जाएगा क्योंकि फाइनल रेस्ट में आई है, u हो जाएगा v मैक्सिमम। फर्स्ट जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी, v मैक्सिमम। एक की जगह माइनस बीटा और टाइम t2, तो इसको ट्रांसफर करोगे तो बीटा इंटू t2 इज इक्वल टू v मैक्सिमम, बीटा इज इक्वल टू v मैक्सिमम, सॉरी t2 इज इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन बीटा। पहले जब हमने टाइम निकाला v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, बाद वाला टाइम हमने निकाला v मैक्सिमम अपॉन बीटा। टोटल टाइम लैप्स ये हमको बोला है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, ये गिवन है टोटल टाइम। अब t1 की वैल्यू रख दो, v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, t2 v मैक्सिमम अपॉन बीटा इज इक्वल टू t। v मैक्सिमम कॉमन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू t। इसका मतलब v मैक्सिमम अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये होगा आपका आंसर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। बिल्कुल ऐसे टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले AB जर्नी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v मतलब v मैक्सिमम स्क्वायर, u मतलब 0 टू a अल्फा s s1। तो फर्स्ट जर्नी में s1 डिस्टेंस हमने अज्यूम किया है, एक्सेलरेशन अल्फा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी v मैक्सिमम। इसका मतलब s1 इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ये s1 की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से जो BC जर्नी है वो भी आएगी s2 इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। बिल्कुल इसी तरीके से
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v 0 रख दीजिएगा, v मैक्सिमम रख दीजिएगा, a की जगह माइनस बीटा और s की जगह s2। सॉल्व करके देखिए इतनी आएगा। तो टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू s1 प्लस s2। s1 आपके पास है v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, s2 हो गया v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। तो s इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इनटू बीटा, यहाँ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। भाई v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकालो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। उसको सॉल्व करोगे एलसीएम होगा अल्फा इनटू बीटा और बीटा प्लस अल्फा। इसके बाद v मैक्सिमम स्क्वायर की हम लोग वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो जो आपका आया है s इज इक्वल टू, उसमें v मैक्सिमम की वैल्यू रख दीजिए अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसा करेंगे तो s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक बीटा। तो s की वैल्यू आएगी अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर आ जाएगा। पर इसी क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते थे। तो ग्राफिकल मेथड से करने के लिए आपको वेलोसिटी लेना पड़ता, ये टाइम एक्सिस, पहले एक्सेलरेट भी है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर जाकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी v मैक्सिमम, उसके बाद रिटार्डेड मतलब ऐसे आएगी और फाइनली रेस्ट। तो ये टाइम एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करोगे तो ये टाइम होगा t1 और ये टाइम होगा t2, ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी। और डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये पूरा एरिया निकालना। तो यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस जरूर आप निकाल सकते हो। ये जो आपका था v मैक्सिमम जो आपने निकाला है, यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा, पर बाकी के लिए आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस मतलब t, टोटल टाइम t, और हाइट मतलब v मैक्सिमम, तो t इंटू v मैक्सिमम। अब s इज इक्वल टू हाफ t, v मैक्सिमम आपके पास में है अल्फा बीटा इंटू t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आंसर हो गया s इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आप डायरेक्ट ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते थे, यही आंसर आएगा। बच्चों नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। Two balls are thrown simultaneously, a vertically upwards with a speed of 20 meters per second from the ground, and B vertically downwards from a height of 40 meters with the same speed and along the same line of motion. At what point do the two balls collide? मतलब क्वेश्चन नंबर 12, ये हाइट
All of the two balls are thrown simultaneously or vertically upward with a speed of 20 meters per second from the ground and be vertically downward from a height of 40 meters. 40 meters. Be downward with the same speed, 20 meters per second. At what point do the two balls collide? तो मान लेते हैं एक साथ थ्रो किया, एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड और यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब है कि A यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, सपोज x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब जो B है वो 40 माइनस x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्योंकि टोटल हाइट हमको 40 गिवन है। कितने टाइम में? सेम टाइम में, क्योंकि साइमल्टेनियसली बोला है, ए को अपवर्ड और बी को डाउनवर्ड। टोटल हाइट 40 है। सपोज ये दोनों बॉल्स ग्राउंड से x हाइट पर मिलती है, टोटल हाइट है 40, तो ए ने भी x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका मतलब b को ट्रेवल करना पड़ेगा 40 माइनस x। अब इक्वेशंस बनाओ फॉर a। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s हो जाएगा x, u हो जाएगा 20 इंटू टी। भाई हमने डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड लिया है और इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड है, इसलिए x प्लस तो 20 भी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा किस तरफ? डाउनवर्ड मोशन के अपोजिट, -10 इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 20t minus 5t square, and suppose this is equation number 1. अब for b सेकेंड बॉडी के लिए सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो b के लिए s हो जाएगा 40 माइनस x, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, फिर 20t प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी डाउनवर्ड है, तो कुल मिलाकर हमको ये कंडीशन बन रही है। इसमें x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो जाएगा 40 माइनस x की वैल्यू रखोगे वो 20t माइनस 5t स्क्वायर is equal to 20t plus 5t square। तो ये 10/2 है तो 5 हो जाएगा ना, इसलिए आप ब्रैकेट ओपन करोगे 40 माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर, 20t प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर कैंसिल। 40 इज इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा, तो 20t प्लस 20t 40t मींस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब दोनों बॉल्स जो है वो कोलाइड करेंगी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी हाइट पर? ग्राउंड से x, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो बाय 1 x इज इक्वल टू 20 इंटू टी, 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर,
तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर। एग्जैक्ट आंसर के लिए तो g की वैल्यू 9.8 रखनी पड़ेगी, और यदि g की वैल्यू आप 10 रख रहे हैं तो हमारे आंसर सब क्लोज आएंगे। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A stone is dropped from a balloon at an altitude of 300 meter. How long will the stone take to reach the ground? If first the balloon is ascending with the velocity of 5 meter per second, second the balloon is descending with the velocity of 5 meter per second, and third the balloon is stationary. भाई बैलून जो है वो ग्राउंड से 300 मीटर हाइट पर है, और उधर से आप किसी स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, पैकेट को, बॉल को, स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो। फर्स्ट कंडीशन में ये बैलून जो है वो अपवर्ड जा रहा है, असेंडिंग 5 मीटर पर सेकेंड से फर्स्ट पार्ट। तो इस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा फाइंड करना है। कभी भी कोई बॉडी मोशन में होती है और उससे जब कोई बॉडी कनेक्टेड हो तो कनेक्टेड बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही होती जितनी मूविंग बॉडी की हो, ड्यू टू इनर्शिया ऐसा होता है। इसलिए आप देखो चलती हुई ट्रेन या चलती हुई बस में जब लोग बाग कूदते हैं तो सेफ रखने के लिए पहले बस के डायरेक्शन में दौड़ते जाते हैं, जो नहीं दौड़ते हैं तो वो गिर जाते हैं। यदि आप बाइक पर बैठकर रोड से चले जा रहे हो और कोई रोड के साइड में खड़ा है और आपका कोई उसको मारने का इंटेंशन नहीं है, बस आप ऐसे हाथ निकाल के बैठे हुए हो, और आपकी बाइक की जो रफ्तार है, फ्रेंड जो चला रहा है, तो बाइक की रफ्तार है 40 मीटर पर सेकेंड, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को झापड़ पड़ेगा। यदि आपका हाथ गाल पर टच हो गया उसके, तो 40 मीटर पर सेकेंड से झापड़ पड़ेगा उसको। पर यदि वही बाइक की स्पीड 60 होती और हाथ टच हो जाता गाल पर, तो डेफिनेटली उसको झापड़ पड़ता 60 मीटर पर सेकेंड की, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जितनी आपकी बाइक की स्पीड होगी वही आपके हैंड की स्पीड होगी। वैसे ही यहाँ जब स्टोन को आप ड्रॉप करोगे तो पहले ड्रॉप स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी अपवर्ड, और इससे पहले वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो कुल मिलाकर के हम इसको इनिशियल पॉइंट ए माने और ग्राउंड को फाइनल पॉइंट बी, तो स्टोन भले ही ऊपर गया नीचे आया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 300 मीटर ही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए पर है और फाइनल पॉइंट बी पर। हाँ, ये बात अलग है कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें हम s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट 300 रखेंगे, जो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, अपवर्ड, इसलिए -5, और टाइम लगा सपोज t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कौन सा वर्क करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव रहेगा 10 इनटू टी स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये 2 से 5, ये
5t स्क्वायर माइनस 5t और 300 को 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। मैंने 300 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया है, तो ये 5t स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब वो बात अलग है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 16 t स्क्वायर माइनस t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसमें टाइम निकाल लीजिए फॉर्मूला मेथड से। टाइम की दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टाइम नेगेटिव नहीं होता, जो पॉजिटिव होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर मैंने इस टाइम को सपोज t1 बोला होता तो ये फर्स्ट कंडीशन का आंसर आ जाता। कौन सा वाला आंसर आता? पॉजिटिव वाला। ये आप सेल्फ कर लीजिएगा। इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें बैलून है तो ग्राउंड से 300 मीटर हाइट पर, लेकिन किस तरफ आ रहा है? डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकंड से। और जब यहाँ से स्टोन को आप ड्रॉप करोगे तो स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मानी जाएगी डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है 300 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और जी भी डाउनवर्ड है। तो अब जो आपका इक्वेशन बनेगा होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी भी ये 300 रहेगा, बस u की वैल्यू जैसे यहाँ नेगेटिव थी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। 5t प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। फिर यहाँ से ये 2 5 हो जाएगा। फिर यही इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड यदि आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो जैसा यहाँ इक्वेशन बना था वैसा यहाँ बनेगा। केवल एक चेंज आएगा, यहाँ टी नेगेटिव था और यहाँ टी पॉजिटिव। इस सेकंड कंडीशन वाले टाइम पे यदि आप T2 बोल देते तो यहाँ पर T2 की वैल्यू निकलती। T2 मतलब टाइम इन सेकंड कंडीशन। अब इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, फिर टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। थर्ड, जिसमें बैलून जो है वो 300 मीटर हाइट पर स्टेशनरी है। ये बैलून आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े बैलून होते हैं, नीचे बास्केट लगी रहती है, उसमें लोग खड़े रहते हैं। अब वहां से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो और बैलून स्टेशनरी है, तो नो डाउट स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और ये 300 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो फिर से इक्वेशन वही होगा, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s अभी भी 300 होगा। अब की बार u की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाफ कौन सा एक्सप्रेशन वर्क करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो पॉजिटिव इनटू t स्क्वायर। तो इससे आप करेंगे तो 300 इंटू 2/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 30 इंटू 2 60, तो t इज इक्वल टू √60। ये आपका थर्ड वाला टाइम आ गया। आप जब निकालेंगे तो आपको देखने मिलेगा इन सब में सबसे कम टाइम जो आएगा वो सेकंड वाले केस में आएगा, जिसमें बैलून किस तरफ था? डाउनवर्ड। क्योंकि स्टोन को क्या मिल जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो जल्दी पहुंचेगा। उससे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा जब बैलून स्टेशनरी था, और सबसे ज्यादा टाइम इसका आएगा फर्स्ट वाले केस में जब बैलून किस तरफ जा रहा था? अपवर्ड। तो ये हो गया बच्चों
आपका क्वेश्चन नंबर 13। मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप यदि वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं।